بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں اور جو شامل نہیں بھی ہیں، جس طرح سے ANP جو ہے وہ حکومتی اتحاد میں شامل نہیں ہے، لیکن آج صبح پریس کانفرنس میں احمد ولی صاحب بھی موجود تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے معزز عدالت عظمیٰ سے، معزز بینچ کے جو جج صاحبان ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، یہ استدعا کی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی جو کنٹروورسی ہے جو اس سے اٹھا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس کرے، فل کورٹ جو ہے وہ کرے اور تمام ججز پہ مشتمل بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اور وہ اس کیس کا فیصلہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ عدالت کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوگا، اور ویسے بھی ایسے جج صاحبان جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مانیٹرنگ جج کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں اور ان بینچز میں بھی شامل رہے ہیں جن بینچز سے نہ صرف PMLN کے لیڈر میاں نواز شریف کو سزا دی گئی، پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، بلکہ جس بینچ میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اور اس وقت جو 63A کا فیصلہ ان فیلڈ ہے، اس فیصلے سے متعلق 99% جو لیگل برادری ہے اس کی یہ رائے ہے کہ وہ ری رائٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو ووٹ ڈالنے اور اس کی پھر کاؤنٹنگ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پوری اسکیم موجود ہے جس میں ووٹ ڈالنے، اس کے کاؤنٹ ہونے اور اس کے بعد پھر ڈیفیکشن کا فیصلہ ڈکلیریشن ہونے اور پھر الیکشن کمیشن کے فیصلہ کرنے اور سپریم کورٹ کی اپیل کا ایک پوری اسکیم درج ہے۔ اس کے ایک حصے کو ڈورمنٹ کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اور یہ صرف رائے قانونی برادری کی نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ اس فاضل بینچ کے 2 معزز جج صاحبان کی بھی ہے کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، وہ آج کل جو ہے وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں فیصلہ جو ہے وہ ادروائز آتا ہے اور یہ بات جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر حمزہ شہباز شریف کی وہی پوزیشن بحال ہو جائے گی جو انہوں نے 197 ووٹ حاصل کر کے وہ ایز چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر کیا صورت بنے گی؟ تو اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ ساری جو ریویو پٹیشن ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ جو پٹیشن ہیں ان سب کو جو ہے وہ اکٹھے سنا جائے، اور جو MPs ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور ECP نے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف پارٹی کے ہیڈ کی جو ہے وہ ڈکلیریشن ہے، پارٹی ہیڈ نے ڈائریکشن دی ان کو اور اس ڈائریکشن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لہذا وہ ڈی سیٹ ہوئے، اور اب بھی ایک پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن ہے اور ان کو جو ہے وہ ڈی سی ان کو جو ہے وہ ان کا ووٹ جو ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کل کو اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے MPs کی پٹیشن میں کہ ان کے وہاں پہ بھی کوئی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، تو پھر کیا صورت بنے گی؟ تو ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہماری یہ استدعا ہے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے وقار میں اضافہ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا
बल्कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा होगा कि वो फुल जो है वो कोर्ट जो है उसका बेंच तश्कील दें और वो जो है वो इसकी जो है वो समाअत करे। और वैसे भी इससे पहले 2015 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि 8 जजेस पे जो है वो मुश्तमिल है, वो लार्जर बेंच था, उसमें भी जो फैसला किया गया वो भी पार्टी हेड के मुतल्लिक़ किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल के इस बात का तकाजा करती हैं कि जो है वो फुल बेंच जो है वो बनना चाहिए और उसके बनने से ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। जी बता। मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर देता हूँ अगर इजाज़त हो। देखें, जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस असमत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के, और 8 जज साहबान ने उनसे मन्नो अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें। चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं और वाज़े तौर पे लिखा उन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा शक्ल है 63A की, उसमें एम्फसिस जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके पार्टी हेड को दे दिया गया है। एक और 5 रुकनी जजमेंट है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा सुना दी गई थी तो उनके ख़िलाफ़ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक पिटीशन फ़ाइल की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है ये तब्दील होना चाहिए। ये जो इसमें तरमीम आई है ये सेल्फ सर्विंग है मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए। 5 जज साहिबान के बेंच ने कहा कि पार्टी में जो सबसे मजबूत आवाज़, रुतबा और पार्टी का जो सबसे मजबूत जो 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 सतून है वो पार्टी हेड होता है। उन्होंने कहा वो लिंच पिन है। उसमें बाकायदा कहा गया कि वो पार्टी को डायरेक्शंस देता है, वोट कैसे डालना है, किसको नहीं डालना, वो टिकटें देता है, वो रुकनीत से निकाल सकता है, वो 63A के तहत फारिग कर सकता है। तो इस सारी बहस के बाद आज जो वकील थे हमजा शहबाज साहब के, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की जो राना साहब ने कहा है। पहली बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू कल को एक्सेप्ट हो जाता है जो कि दाखिल हो चुका है और उसको नंबर लग चुका है, तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्ज़ामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद खान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इस पर फुल कोर्ट बिठाएँ। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्ज़ामिन कर ले। अगर फ़ैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी अदालत ये फ़ैसला दे सरे तस्लीम खम करके जाएंगे यहाँ पे। यानी ये तीनों जजमेंट जो है कन्फ्लिक्टिंग है, तीनों जजमेंट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है। नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज़ में फिक्स कर दिया जाए और सुन लिया और जाए। अगर फैसला अदरवाइज आया तो फिर क्या होगा? उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी जी अता साहब बात कर रहे हैं। अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है तो फिर इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो 25 अरकान
जो बहाल हो डीसी जाएंगे। हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अरकान को मिला के ले चुके हैं। तो इन आइदर केस ये केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किस रूल के तहत और क्या चीज़ें उसके सामने थी जिसके तहत उसने गिलानी साहब के इलेक्शन को 7 वोट माइनस करके संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे। अच्छा, ये बताइएगा कि जब वो मेंबर बन रहे थे तो उस वक्त जी जी नहीं जी, हमारा ये जो है ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे, और हमज़ा साहब जो है वो इस पर फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डेप्टी स्पीकर साहब उनकी उनकी अपनी choice है। चॉइस है कि वो फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं। जी नहीं 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 नहीं, कोई जी, क्या- धमकी धौंस नहीं है। नहीं, ये कोई धमकी और कोई धौंस नहीं है। देखें, ये जो तीनों चीज़ें तारण साहब ने जो है वो क्लियर की हैं। अब आप देखें कि अगर ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलती हैं और फिर जो है वो फैसले आते हैं, तो उससे क्या अदालत उज़्मा की जो है वो तौक़ीर में इजाफा होगा या उससे जो है वो कमी होगी, और ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये डिस्कस होगी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और उससे जो जिस किस्म की सूरत हाल बनेगी उससे हम बचना चाहते हैं और हम फिर उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, ये बता दें कि जब परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन रहे थे तो पार्टी हेड की तरफ से उस वक्त उनको क्यों नहीं मुस्तैद किया गया? ये उन्हों का मसला है। नहीं, एतराज़ क्यों नहीं देखें ये पहली बात तो ये है कि ये पार्टी का मसला है, और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी पॉलिटिकल जो उनके मामलात हैं उनसे मुतल्लक है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने भी कभी चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र की थी कि आप वज़ीर आला बन जाएं। नहीं, चौधरी वहाँ साहब- पे दुआए खैर भी हुई थी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिठाई लेके जरदारी साहब के घर भी गए थे, और उस दुआए खैर में चौधरी शुजात साहब भी मौजूद थे। तो ये उनका एक अपनी फैमिली का डिस्प्यूट एक है, और उसमें बात नहीं पड़ना एक और चाहते। बात भी है, सदर मुस्लिम लीग काफ की हदायत पे उनके 2 MNAs कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हिस्सा हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखेंगे। हम मरकज़ में जिस जमात के साथ हैं उसी जमात के साथ हम सूबे में भी रहेंगे, और वो सारों के सामने और है। फिर पंजाब असम्बली में आपने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी होंगी कि जो क्यू लीग के मेंबर्स थे वो जो है वो अबहाम में थे, वो वोट कास्ट नहीं करना चाहते थे। वो कर गया। काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे बैठे रहे, उसके बाद बाकायदा जो है उनको धौं से ज़बरदस्ती जो है उनका वोट कास्ट हुआ है। साथ एक राय मूला सलाई साहब आज लोगों के लिए जब टॉक किया कि परवेज़ इलाही साहब 10 वोट हमारे तो साथ यही तो तशरीह कराना लेकिन बात चाहते यह हैं। है कि यही तो हम चाहते हैं कि ये बात जो है ये क्लियर हो। वो 25 भी तो हमारे साथ थे ना, फिर उन 25 को वो भी थैंक यू जी।